Very good evening. Good evening, sir. Yeah, so today we start new sessions, new units. Yes, yesterday we have taken overview of three units, unit 1, unit 2, unit 3, and today we will discuss more further units and try to complete at least 3 unit today. This is the MVE 5 talking about which is talking about the different roles of sales, different techniques of sales, different workforce who is employed in sales. So similarly, and that is to pharmaceutical sales management. So today's topic is sales process. We have discussed what is sales. We have discussed what are the functions of sales. We have discussed what is the role of medical representative as a sales agent. Now today we will discuss what is sales process. Although we have taken a slight overview in earlier slides regarding the sales process, and we will discuss this sales process in detail today. You all are already aware that when a medical representative is visiting a doctor or a client and detailing about the product is a process of personal selling, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास या अपने फैक्ट्री ओनर के पास प्रोडक्ट को लेने के लिए और उसके बाद फर्दर उसको डॉक्टर के साथ डिस्क्राइब करने के लिए टू वे प्रोसेस के थ्रू. So that is the part of personal selling. Similarly, when a salesperson, इसमें एक एग्जांपल लिया यूरेका फोर्ब्स का, आपने देखा होगा घर की क्लीनिंग करानी हो या और कुछ हाउस होल्ड से रिलेटेड जो वर्क है वो अगर कराना हो तो यूरेका फोर्ब्स इज ए वेरी known firm which is being used in the house homes and even at big level kind of hotels and all. तो इसमें एक एग्जांपल यूरेका फोर्ब्स का दिया है कि सपोज a person of Eureka Forbes contact a housewife and sells his vacuum cleaner. He is actually doing personal selling. When the salesperson of Hindustan Lever visits a grocery stores and sells Lux, Lifebuoy, जो इसके प्रोडक्ट हैं, व्हील एक्सेट्रा, ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग एज पर्सनल सेलिंग. इसमें एग्जांपल दिया है कि यूरेका फोर्ब्स अगर किसी वुमेन को, हाउस वाइफ को कांटेक्ट करता है और अपना वैक्यूम क्लीनर बेचता है तो वो टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू, दैट इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि द पर्सन हु इज सेलर एंड द पर्सन हु इज बाइंग मीन्स बायर, both are in front of each other and they can, if the person who is taking the product means buying the product, he can get resolved the queries from the seller. So ये सेल्स
जो है वो डेट कम्स अंडर द पर्सनल सेलिंग, जिसको हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। A child asking for a favor from his mother by requesting her to buy him a chocolate or pack of cookies is also practicing personal selling. So vast is the scope of personal selling that everybody has experience. जो हमने लास्ट की जो थी कल की जो स्लाइड थी उस पर भी हमने डिस्कस किया डिटेल में, पर्सनल सेलिंग किस तरह से अपना काम करती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग even kind of this personal selling and distribution is also different, selling and distribution is different. तो कल हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की। The goal of all marketing efforts is to increase profits, though sales by offering needs and gratification to the customer or any other means. The main purpose of the all marketing efforts is to get profit. पर्सनल सेलिंग इज ए मेजर प्रमोशनल मेथड टू अचीव दिस गोल। और इनमें बहुत सारे जो जहां हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि मार्केटिंग एफर्ट्स का एक ही मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्ट है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। पर्सनल सेलिंग इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट बिकॉज हियर द पर्सनल सेलर is directly touch with the customer or consumer. In many companies, personal selling is the largest operating expense, often totaling 7 to 13% of the sales. मैं इसे बताया है कि इसमें कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें से 7 to 13% जो प्रोडक्ट्स का सेल है दैट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल सेलिंग. So it means personal selling is taking important role in the sales process. तो कल भी हमने इस पर्सनल सेलिंग के बारे में बात की थी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल लिया था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डोर टू डोर जाता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अवेयर करता है कंज्यूमर को एंड उसकी नीड अराउज करता है और उसकी जितनी भी क्वालिटी हैं प्रोडक्ट की उन सब के बारे में काइंड ऑफ डिस्कशन करता है। और अगर जो भी कोई क्वेरी है कंज्यूमर की तो उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करने का प्रयास करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और कल हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कुछ क्वालिटीज़ थी वो भी हमने डिस्कस की। तो आज के टॉपिक में एक जस्ट कल का थोड़ा सा ओवरव्यू है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनल सेलिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट्स क्या होते हैं। दूसरा जो डिफरेंट थ्योरीज हैं पर्सनल थ्योरिंग की, पर्सनल सेलिंग की, जिसमें एडिडास है और कई सारे हैं, ये मैंने इम्पोर्टेंट एक जो था उसमें। उसके बाद जो हमारे कंपोनेंट है, वेरियस कंपोनेंट पर्सनल सेलिंग के, जो पर्सनल सेलिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो स्टेप्स, जो एक्चुअल सेलिंग जो सेल्स प्रोसेस है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस टेक फर्स्ट पर्सनल सेलिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। पर्सनल सेलिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में मैंने कल बताया था दिस इज अनदर नेम दैट इज 4P एंड 4P स्टैंड फॉर फर्स्ट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। सो ये 4P आगे भी आपको जितने भी क्लास होंगे उनमें भी याद रखिएगा। जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 4P. 4P means product, price, promotion and place. The promotion mix, which is an important component of marketing mix, also has 4 parts. जो हमने कल हालांकि हमने 4C's भी पढ़ी थी, लेकिन है मार्केटिंग मिक्स में जो और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जितने भी हमने प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस के बारे में बात की, उसमें 4 चीज़ और इम्पोर्टेंट है। दैट इज पर्सनल सेलिंग, क्योंकि आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। जब when we are talking marketing mix, that is 4P. When we are talking this प्रमोशनल मार्केटिंग मिक्स, तो उसमें ये 4 चीज़ें और जुड़ जाती हैं, प्रमोशनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रोडक्शन। एंड ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्दर आगे जो हमारा जो टॉपिक है उसको
एनहांस करने में काम आएगा। सो एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या पर्सनल सेलिंग काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग है? हालाँकि इसको हमने कल भी पढ़ा था कि पर्सनल सेलिंग इज़ डिफरेंट एंड एडवर्टाइजिंग डिफरेंट, लेकिन दोनों का बेसिक मोटिव है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू हो या और जो आपका जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स है, सिनेमाज़ हैं, इन सब के थ्रू हम इन्फॉर्मेशंस को अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस को अपने क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। व्हेरेज द पर्सनल सेलिंग इज कंसर्न, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक पर्सन विच इज नॉन एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स एजेंट हु इज गोइंग टू एट डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर, सो कंज्यूमर के जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करता है। देयरफॉर दिस पर्सनल सेलिंग इज टू वे कम्युनिकेशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। दोनों ही प्रमोशन का काम कर रहे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट की अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं, बट एडवर्टाइजिंग इज वन वे प्रोसेस, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में सुनने वाला कोई नहीं है, वापस सुनने वाला कोई नहीं है फीडबैक के लिए कि अगर किसी के मन में कोई डाउट हो। वन वे है एडवर्टाइजिंग में, प्रोडक्ट की क्वालिटी इन सब के बारे में बताया जाता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो दैट इज एड्रेस्ड बाय पर्सनल सेलिंग ओनली। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। यही है इन एडवर्टाइजिंग अदर हैंड द कंज्यूमर डज नॉट कोर्स द डिफरेंस कॉन्टैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये वन वे कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजिंग, और वेयर एज दिस पर्सनल सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन है। एक और बेसिक डिफरेंस इस चार्ट से आप समझिएगा, पर्सनल सेलिंग हो या एडवर्टाइजिंग हो, इनके 3 स्टेप होते हैं। वन इज प्री परचेज, खरीदने से पहले, एक डूरिंग द परचेज, जब बायर प्रोडक्ट को खरीद रहा है, एंड थर्ड वन इज पोस्ट परचेज, जब प्रोडक्ट हमने खरीद लिया। तो देखिए एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें, खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाने का काम कंपनी करती है। सो आप देख रहे हैं कि जो इसका परचेज के कॉन्टेक्स्ट में जो एडवर्टाइजिंग के केस में डॉटेड लाइन से है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा हाई है, और जैसे जैसे कस्टमर अपना इंटरेस्ट शो करता है प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। यानी कि जिस समय जो बायर है वो प्रोडक्ट खरीद रहा होता है, उस समय कोई एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर वो खुद भी एक प्रमोशन का एक एजेंट बन जाता है, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो डिफरेंट लोगों में, सोशल मीडिया में, अपने पीयर ग्रुप में, सोसाइटी में उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करता है। यानी कि खरीदने के बाद भी एक जो पहले से चल रही है मार्केटिंग प्रमोशंस की, वो एक जो इंडिविजुअल द्वारा जो उसके जो बायर हैं वो भी उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। सॉरी, ये एडवर्टाइजिंग है। वेयर इज अ पर्सनल सेलिंग, आपने देखा कि इसको देखें, जो डार्क लाइन दिखा रखी है प्री परचेज में, ये डाउन पे है, मीन्स यहाँ पर्सनल सेलिंग जो एमआर है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आया है, और चूंकि कांटेक्ट में नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा सवाल कस्टमर के दिमाग में है नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो कस्टमर तक पहुंचने का प्रयास करता है पर्सनल सेलर, पर्सनल सेलिंग में जो जिस समय वो खरीद रहा होता है, उस समय ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में। आप देख रहे हैं कि वो हाईएस्ट पे चला जाता है ये वाला ग्राफ, और जैसे ही प्रोडक्ट खरीद लेता है, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ पे काम खत्म हो गया, पर्सनल सेलिंग का काम खत्म हो गया, फिर बाकी दूसरे कस्टमर के पास जाएगा। इसलिए पर्सनल सेलिंग में कस्टमर की जो क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो गई हैं, उनकी जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो उनके जवाब दे दिए हैं पर्सनल सेलिंग में। इसलिए ग्राफ धीरे धीरे पोस्ट परचेज के बाद, यानी कि खरीदने के बाद, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी उतना ज़्यादा उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, यानी कि उतने क्वेश्चंस के जवाब वो नहीं देता जितना वो
ड्यूरिंग द दिस परचेजिंग के दौरान जितना भी होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग में और पर्सनल सेलिंग में। लेकिन पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन दिस एडवर्टाइजिंग। सो देर आर personal selling has very significant role. So what are the significance of personal selling? There are some personal selling implement the marketing strategy। जब हम एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें कि कोई फार्मास्यूटिकल सेल्स का कोई प्रोडक्ट है, उसको डायरेक्टली कस्टमर के पास जाकर के वो डिलीवर कर रहा है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में उसको अवेयर कर रहा है, जो डाउट हैं उसके कस्टमर के उनको इमीडिएटली रिज़ॉल्व कर रहा है। साथ ही साथ जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। तो ये पर्सनल सेलिंग का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है कि पर्सनल सेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करती है इन रियल वे। पर्सनल सेलिंग ब्रिंग मनी टू द कंपनी। ये तो देखिए एडवर्टाइजिंग में कोई मनी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ एडवर्टाइजिंग के थ्रू कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट अवेयरिंग द सोसाइटी, वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू द मासेस। वेयर इज द पर्सनल सेलिंग में चूंकि प्रोडक्ट को वो डोर स्टेप जाकर के सेल कर रहा है, उनकी क्वालिटीज़ को बता रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस ज़्यादा बता रहा है, और साथ में जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी एड्रेस कर रहा है पर्सनल सेलिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और साथ में जब प्रोडक्ट उसने बेच दिया तो डेफिनेटली मनी वो कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कंज्यूमर्स। सो पर्सनल सेलिंग में जो मनी है वो कंपनी को मिलती है, एडवर्टाइजिंग में नहीं मिलती है। एडवर्टाइजिंग बाद में मिलती है जब वो अवेयर हो जाता है कस्टमर, तो वो शॉप से अपना आप जाके खरीदता है, पर्सनल सेलिंग से नहीं। पर्सनल सेलिंग मेक द ऑर्गेनाइजेशन नॉन। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया में या कहीं भी आप एडवर्टाइजिंग करें तो वो मतलब लास्ट का जो व्यक्ति है, जो अनरीच्ड है, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दैट इज पॉसिबल थ्रू पर्सनल सेलिंग ओनली। पर्सनल सेलिंग में चूंकि व्यक्ति खुद जाता है एट द डोर स्टेप, वो प्रोडक्ट के बारे में और ये प्रोडक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन को एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक नेम एंड फेम मिलता है। सो दिस इज द वन ऑफ अदर सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मेंटेन एंड क्रिएट कस्टमर्स। यस, पर्सनल सेलिंग में चूंकि जब आप बार बार डोर स्टेप जाएंगे, चीज़ों को बार बार डिलीवर करेंगे एट डोर स्टेप, डेफिनेटली कस्टमर के साथ रिलेशन बनता है और साथ ही साथ और भी नए कस्टमर्स बनते हैं। क्योंकि जो पर्सनल सेलिंग में जो खरीद लेता है प्रोडक्ट, वो बाकी को बताता है कि उस दिन पर्टिकुलर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कोई सेल्स मैनेजमेंट आएंगे, तो आप डायरेक्टली उनसे प्रोडक्ट खरीद लीजिए। और उनसे अगर आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है, देन यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स एजेंट। सो पर्सनल सेलिंग में मेंटेन होता है कस्टमर के साथ रिलेशन, और नए भी बनते हैं रिलेशंस कस्टमर के साथ। पर्सनल सेलिंग इज सोर्स ऑफ फीडबैक। पर्सनल सेलिंग में जैसे आपको कहा कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं बायर के, और जो पर्सनल सेलिंग में जो पर्सन है हु इज डीलिंग पर्सनल सेलिंग, वो डायरेक्टली जवाब देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ऐसे केस में अगर हमें दोबारा जाना है उस एरिया में, तो हमें उसमें फीडबैक भी मिल जाती है उस कस्टमर से कि आपने जो प्रोडक्ट दिया था, हमने इसको यूज़ किया है और हमने ये क्वालिटीज़ पाई हैं और ये कुछ इसमें बैरियर्स हैं इसकी क्वालिटी मेंटेनेंस में। तो यहाँ पर फीडबैक प्रॉपर मिलता है, क्योंकि पर्सनल मार्केट में बार-बार जो पर्सन है, बार-बार जाता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है और फीडबैक भी कलेक्ट करता है। पर्सनल सेलिंग में एक न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुल। पर्सनल सेलिंग में नए प्रोडक्ट सेल पॉसिबल है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, वो पब्लिक को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाती जितना पहले से ऑलरेडी जो चल रहे हैं प्रोडक्ट, उनको प्रति वो ऑलरेडी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग में चूंकि पर्सनल सेलर जो है वो बार बार डोर स्टेप जाता है, तो लोगों को एक फेथ होता है, फेथ डेवलप हो जाता है that person is coming at our doorstep and selling their product,
मीन्स देयर इज ए सम जेन्युइननेस एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गुड। वो कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे, अगर वो ये कह दे कि यस दिस प्रोडक्ट इज गुड, सो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो क्लाइंट है, वो उसको खरीद लेंगे, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो एक डेवलप हो गया है फेथ, वो उसी के रिवार्ड्स में या रिगार्ड्स में बाकी नए प्रोडक्ट भी पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू उन्होंने खरीदा है। सॉरी। सो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं सेलिंग की, जिसमें जो पहली है आइडास थ्योरी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में राइट सेट ऑफ कंज्यूमर सर्कमटेंसेस थ्योरी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। दैट थर्ड वन इज बाइंग फार्मूला थ्योरी। जो AIDAS थ्योरी है, वो बेसिकली दीज आर द एब्रीविएशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। मीन्स फर्स्ट A is attention, then I for interest, D for desire, A for action and S for satisfaction। तो जिस प्रोडक्ट के सेल्स में सबसे पहले अटेंशन होता है कि किसी प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है वो अटेंशन होता है, यानी मीन्स उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है उसको, उसके बाद में उसका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को जानने का, और जब उसका इंटरेस्ट होता है फिर उसको डिज़ायर करता है कि वो इस चीज़ को उसे लेना चाहिए, अगर ये यहाँ पॉसिबल, यहाँ अवेलेबल हो। फिर फर्दर उस पर एक्शन लेता है। एक्शन मीन्स उसको परचेज करता है, उसको बाय करता है, उसको ख़रीदता है, और उसको यूज़ करने के बाद उसको फिर सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। ये है आपकी सेल्स थ्योरी। आइडियाज थ्योरी that is the abbreviation of these 5 different stages: first attention, interest, desire, action and satisfaction। तो ये इन अगर हम पांचों के बारे में बात करें तो दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज आइडियाज थ्योरी। जैसे अटेंशन मैंने कहा है कि पहले वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसके बाद में अट्रैक्ट होता है उसके लिए, ये अटेंशन है। इंटरेस्ट मैंने बताया कि फिर वो अपनी एक वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है प्रोडक्ट के लिए बाय नोइंग द फैक्ट अबाउट द प्रोडक्ट। देन डिजायर करता है उसको कि इसको हम नेक्स्ट खरीद लेंगे जब भी अभी कभी अवेलेबल होगा हमारे डोर स्टेप पर। एक्शन मीन्स फिर उसको खरीद लेता है सक्सेसफुली उसको, उसके बाद में उसको यूज करता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल फिर यूरेका फोर्ब्स का दिया है कि यूरेका फोर्ब्स को उसने खरीद लिया, और जब उसको यूज किया तो उसको लगा कि ये प्रोडक्ट उसके सेटिस्फेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन लेवल। तो ये 5 स्टेप थ्योरी को आप आइडियाज थ्योरी ऑफ सेल्स कहते हैं। सेकंड है राइट सेट ऑफ सर्कमटेंसेस थ्योरी। जैसे कि नाम से बहुत क्लियर है कि सर किसी भी सर्कमटेंसेस में अगर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है तो जो आपका जो बायर है वो उसको खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट आपके सामने ऐसे है कि आपको हैबिट है कि आप लाइफ बॉय से नहाएंगे, लक्स से नहाएंगे, या आपको जो पेस्ट है वो क्लोजअप चाहिए या कोई और चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर समय में वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाई, तो आपको जो भी पड़े हो, जो भी अवेलेबल है उस सर्कमस्टेंसेस में आप उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड राइट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस थ्योरी। जैसे हिली एरियाज में आप जाएंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है आप बाउंड होंगे उनमें से ही किसी को खरीदने के लिए। थर्ड है बाइंग फार्मूला थ्योरी। बाइंग फार्मूला थ्योरी बेसिकली स्टेप थ्योरी के रूप में इसको आप देखिए। सबसे पहले कस्टमर की नीड्स होती है कि मुझे अपने कपड़े वॉश करने हैं, फिर वो सॉल्यूशन ढूंढता है कि मैं अपने कपड़े किससे वॉश करूं, सॉप से, डिटर्जेंट से, या लिक्विड से, लिक्विड डिटर्जेंट से। उसके बाद वो उन सॉल्यूशन में से खरीद लेता है कोई भी प्रोडक्ट। मीन्स ये जो हुआ
ये वो आपका बाइंग फार्मूला थ्योरी। इसके बाद फिर जब फर्दर जैसे उसने खरीद ली चीज़ों को, पहले उसको नीड्स किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि उसे अपने क्लॉथ्स वॉश करने हैं, फिर वो ढूंढता किस तरह से वॉश करने हैं, कहाँ वो, उसके बाद में वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो परचेज कर लेता है अपने उसको। लेकिन इसमें फिर एक फर्दर एक चीज़ जुड़ जाती है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। आपकी नीड थी, आपको क्लॉथ वॉश करने हैं, आपने सॉल्यूशन ढूंढा, वेदर यू वांट डिटर्जेंट केक और डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट। उसके बाद में आपने उसको खरीद लिया, मीन्स यू हैव टेकन एक्शन, देन सेटिस्फैक्शन कम्स। अगर आपका सेटिस्फैक्शन है फिर आप फर्दर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप उसको फिर नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट को। ये नेक्स्ट है, नीड आपकी थी, जब आप किसी प्रोडक्ट को सेटिस्फैक्शन लेवल तक आप देखेंगे, सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आप फिर फर्दर ये देखेंगे कि ये सेटिस्फैक्शन तो मिला लेकिन ये प्रोडक्ट है किस कंपनी का। सो ये एक सीक्वेंस और डेवलप होती है कि नीड्स हुई, उसमें आपने सॉल्यूशन ढूंढा कि हमें शॉप चाहिए या फिर आता है कि हमें किस कंपनी का चाहिए, कौन सी ब्रांड का है ये जो अवेलेबल है, ये अच्छी ब्रांड है या नहीं है। फिर आप ब्रांड नेम चूज करेंगे, उसके बाद उसको आप परचेज कर लेंगे। देन दोनों ही स्थिति में आपने देखा कि कई बार बहुत अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं होते हैं, और कोई सिंपल सी न्यूली लॉन्च ब्रांड हो उसके प्रोडक्ट अच्छे जाते हैं, तो उसके बेस पर सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो यही है आपके फार्मूला बेस्ड थ्योरी, यस, बाइंग फार्मूला थ्योरी। उसके बाद में है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। पर्सनल सेलिंग कैसे स्टार्ट होती है, हालांकि ये भी हमने कल डेवलप की थी, डिस्कस की थी। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। हम एक जनरल प्रोस्पेक्ट तैयार करते हैं प्रोडक्ट का, ताकि हम उसको लेके जाएंगे अपने कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स के बीच। देन प्रिपरेशन टू मीट इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स। पर्सनल सेलिंग में हमें इंडिविजुअल से कैसे मिलना है, मिलने के बाद हमें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है। थर्ड वन है मेकिंग द प्रेजेंटेशन, यानी कि अपने प्रोडक्ट की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी उसके जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो हम प्रेजेंटेशन दो तरह का होता है, या तो ऑरल प्रेजेंटेशन हो या फिर एक काइंड ऑफ नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन हो, या थर्ड वन आपका स्लाइड्स के थ्रू जो आजकल चल रहा है उसके थ्रू। यानी आपने अगर 10-20 कस्टमर्स को बुलाया, उनके सामने इवन अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी, और साथ में उनके बीच में जो जो भी क्वेश्चंस आते रहे, क्वेरी आते रही, आपने उसको टाइमली हैंडल किया। सो दैट इज मेकिंग द प्रेजेंटेशन। मेंटेनिंग द इंटरेस्ट एंड अराउज द डिजायर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन है उसका इम्पोर्टेंट टास्क है कि वो लोगों में इंटरेस्ट अराउज करे, उनकी डिजायर अराउज करे टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। देन फील्डिंग द दिस ऑब्जेक्शंस। फील्डिंग द ऑब्जेक्शंस मीन्स जो कई बार क्रिटिक भी आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर्स डिफरेंट प्रोडक्ट को यूज करते हैं और कई बार उनको लगता है कि योर प्रोडक्ट इज न्यू, दैट मे नॉट बी रीच एट द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इस तरह के क्रिटिसिज्म आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एज ए पर्सनल सेल्स एजेंट या एज ए पर्सन हु इज डीलिंग पर्सनल सेलिंग, उसके रूप में बहुत सारे क्रिटिक मिलेंगे। मीन्स फील्डिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। आफ्टर सेल्स सर्विस, ये भी एक पर्सनल सेलिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने इतनी सारी मेहनत की, प्रोस्पेक्टिंग की, इंडिविजुअल को मिलने का प्लान बनाया, आपने प्रेजेंट किया प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद में इंटरेस्ट अराउज किया, उसके बाद में जो क्रिटिक थे उनको भी आपने फेस किया। देन उसके बाद में सेल्स आपका हो भी गया, मीन्स प्रोडक्शन आपका परचेज हो गया। उसके बाद में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो पर्सनल सेलिंग को बेटर बनाती हैं, दैट इज पोस्ट सर्विस। आपने डिलीवरी के बाद जो सर्विसेज उनको देनी है कस्टमर को, कंज्यूमर को, वो भी इम्पोर्टेंट है।
और वो टाइम टू टाइम नहीं, जैसे भी आपने देखा टोल फ्री नंबर उसी का एग्जांपल है कि कोई प्रोडक्ट हुआ, उस फीडबैक दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप फर्दर असिस्टेंस भी मांग रहे हैं कि इस चीज़ को आप रिजॉल्व कर दीजिए, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन योर प्रोडक्ट। इन्हीं के बारे में बताया। पहला प्रोस्पेक्टिंग है जो हमने अभी डिस्कस किया। देन इंडिविजुअल जो प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में। देन मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, जैसे हमने कहा कि वो एक स्लाइड्स ही बना सकता है, ऑरल या वर्बल के रूप में भी, नॉन वर्बल के रूप में, फिर अटेंशन ड्रॉ करता है। ये सब वही है, होल्ड इंटरेस्ट एंड डिजायर को अराउज करता है, बिल्डअप करता है। सेल्स रेजिस्टेंस मीन्स फील्डिंग, जो क्रिटिक होती है उसको भी वो हैंडल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेल्स को, पर्सनल सेल्स को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो दिस इज यूनिट 4. So let us take another unit within 1 minute. So our next topic is communication skills. See, you must have seen there are very good skills we have discussed yesterday of medical representative who is dealing personal selling. But there are some important skill that should be taken care by a एजेंट, पर्सनल एजेंट हु इज डीलिंग पर्सनल सेलिंग। और इन्हीं के बेस पर आपने देखा होगा कई बार बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ। इफ वी आर soft in our speaking, if our body gesture is our motive for the promotion of sales, is very kind and very attractive to the person who is buying the product, so ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी एज ए पर्सनल सेलिंग इंडिविजुअल हु इज डीलिंग द पर्सनल सेलिंग, our communication skill must be good enough to attract and to motivate the consumer to purchase or to buy the product. So communication skill में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा है good communication is one of the important skill required for marketing of pharmaceutical product. The word communication is based, ये कॉमन से लिया गया है, इसका मतलब है कि शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बिना कम्युनिकेशन के मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। इट इज दैट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज चार्ज विद द टास्क ऑफ इन्फॉर्मिंग, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, दैट इज पॉसिबल थ्रू द कम्युनिकेशन ओनली। ऑल्दो कम्युनिकेशन हैज वेरियस टाइप, सो वी विल डिस्कस इन
जो कमिंग जो स्लाइड्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो बिना कम्युनिकेशन हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक अवेयर द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। इसी कम्युनिकेशन में हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे इसके प्रोडक्ट के रेट्स क्या हैं, इसकी यूजेज क्या हैं और वो आपको कहाँ अवेलेबल मिलेगा, कहाँ अवेलेबल होगा आपका प्रोडक्ट। सो वी डिस्कस ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन आवर कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। क्योंकि कम्युनिकेशन में आपने जो मार्केटिंग मिक्स पढ़ा होगा 4P, 4P में से एक और है जो है प्रमोशन, जिसमें हमने पढ़ा 4P में। सो प्रमोशन भी किसी के थ्रू होता है, प्रमोशन भी कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग मिक्स मीन्स 4P आल्सो। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। A study of marketing communication, there is a study of promotion function of marketing, notwithstanding the continuing debate whether promotion is the first element of marketing mix or last, but promotion is the one of the एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसे हमने पहले पढ़ा। क्योंकि ये लास्ट ही एक वो है पॉइंट। पहला है आपका प्रोडक्शन, देन सेकंड आपने जो अभी 4P जो पढ़ा था, एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है वो। 4P नहीं, वो लास्ट स्लाइड्स में था वो, बट उसमें एक जो प्रमोशन है दैट इज वन ऑफ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यस। सो जो हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे थे, तो उसमें आपने जो लास्ट जो इससे प्रीवियस स्लाइड्स थी उसमें देखा था 4P इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के बारे में और फिर उसके प्राइस कितनी होगी, वो कहाँ अवेलेबल होगा, और उसका प्रमोशन। सो प्रमोशन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और ये चूंकि एक कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट है, चूंकि प्रमोशन जो होगा वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। सो दैट इज द प्रमोशन। हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। कम्युनिकेशन बेसिकली, जैसे आपने देखा, कम्युनिकेशन इज जस्ट ए टूल और मोड टू गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट among द मास, एंड मास मीन्स कंज्यूमर। जो उसका क्लाइंट है, जो उसका स्टेक होल्डर है, उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाना का जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज कम्युनिकेशन। सो इफ वी सी इन डिटेल, कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स हैं। पहला है सोर्स है, मीन्स कहाँ से वो इंफॉर्मेशन दी जानी है। अंडर नेक्स्ट टारगेट, किसको दी जानी है। दूसरा, क्या हमें मैसेज कम्युनिकेट करना है, क्या इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करनी है प्रोडक्ट के बारे में। देन उसके बाद में है, जैसे हमने मैसेज हमने बोला, दूसरा वाला जो हम तो हैं एक तरह से मैसेज को ट्रांसमिट करने वाले। जो हमारे दूसरे एंड पर है, जो कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम द सोर्स। और उसके बाद में उसका एक इम्पॉर्टेंट है कि गोल ऑफ मैसेज मीन्स मैसेज इज एक्सेप्टेड और डिनाइड बाय द रिसीवर। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज मीडियम। अब हम अपने कम्युनिकेशन को कौन से मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स हम लोग सोशल मीडिया जो आपका मीडियम है उसको यूज कर रहे हैं, या प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हैं, या आप कोई रिटिन कम्युनिकेशन जो मेथड है वो यूज कर रहे हैं, या सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, बॉडी जेस्चर या जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के।
पहला है सोर्स, कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, मीन्स दैट वीडा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है सोर्स। उसके बाद में टारगेट, जिसको हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है प्रोडक्ट की, वो आपका कंज्यूमर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। मैसेज, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे अपने मासिस को, अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को एज ए सेल्स मैन। फिर वो मैसेज को रिसीव करेगा, देन उसको वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि वो किस तरह का मीडियम यूज कर रहा है कम्युनिकेशन में, यानी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। तो यही है आपका सोर्स, यानी कि जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकलनी है। वो फैक्ट्री भी हो सकती है, मैनेजमेंट भी हो सकती है, या उसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जो उस इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड कर रहा है। अगर हम सोर्स की बात करें कि हु सेज व्हाट हाउ एंड टू हुम, जैसे सोर्स में सेंडर हुआ जो अपनी इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। एनकोडिंग, यानी कि जो बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि दो कॉर्नर पे दो लोग खड़े हैं, एक है वक्ता, एक है रिसीवर, यानी कि एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। जो बोलने वाला है दैट इज सेंडर, जो सुनने वाला है वो है रिसीवर। लेकिन और इनके जो बीच में है, जिस भी तरह से वो इन्फॉर्मेशन बोल करके उनको पहुंचा रहा है, तो यहाँ पे एक मीडियम है आपकी वॉइस, जो वॉइस है वो उस तक पहुंच रही है। लेकिन एनकोडिंग एक चीज़ और है, कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप 100, अगर कोई भी सेंडर या कोई भी सोर्स 100% इंफॉर्मेशन वो डिलीवर करता है, तो सोर्स के बाद जो रिसीविंग एंड पर जो रिसीवर है, उसके पास कभी भी 100% इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मीडियम जो फैक्टर है, कई बार वो सुन नहीं पाता इन्फॉर्मेशन को पूरा या इन्फॉर्मेशन को पूरा याद नहीं कर पाता, वो एक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाता सारी इन्फॉर्मेशन को। कई बार वो जो स्पीकर है जो बोल रहा है, उसके लैंग्वेज इशू हो सकते हैं, जो उसको वो डिकोड नहीं कर पा रहा है रिसीविंग एंड पर, या बोलने वाला इंग्लिश में बोल रहा है, सुनने वाला हिंदी में, हिंदी के लैंग्वेज से ही वो वेल वर्स है। देयर आर सो मैनी फैक्टर। तो इसीलिए जो मैसेज जो हम लोग एनकोड कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं उतना का उतना ही डिकोड हो जाए। ये एक कम्युनिकेशन का एक चीज़ है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये इसके बारे में टारगेट बताया, द मैसेज एंड इट्स गोल बताया, मीडिया मीन्स कौन सा मीडियम उसको यूज हो रहा है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। सॉरी। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, अभी आपने जो पढ़ा वो आइडास थ्योरी पढ़ी कम्युनिकेशन की। तो इसमें अगर हम लास्ट वाले एस को हटा दें तो एडा एक्रोनियम बच जाएगा, जिसमें अटेंशन होगा, इंटरेस्ट होगा, डिजायर होगा एंड एक्शन, मीन्स सेटिस्फेक्शन को हमने हटा दिया। तो इसको हमने एक नाम दे दिया मॉडल, एडा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और इस एडा मॉडल में पहले हम प्रोडक्ट के बारे में अटेंशन क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर डिज़ायर उसमें क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में फिर एक्शन होगा, यानी कि उसको हम जो कस्टमर है उसको परचेज कर लेगा, उसको खरीद लेगा प्रोडक्ट को। तो ये एक एडा मॉडल है। एक बार एडा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की जगह एडा मॉडल भी पूछ लेते हैं। देखिए इसने पूछा है व्हाट इज एडा, कम्युनिकेशन मीडिया एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। दो चीज हमें समझने की जरूरत है, कम्युनिकेशन बेसिकली होता किस तरह का है। कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। वर्बल जो हम लोग स्पीक करते हैं, सोशल मीडिया हुआ या आपका ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है, जो ऑरल भी उसमें आता है और इसमें रिटन भी इनफैक्ट उसी में आता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में हमें बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने बॉडी जेस्चर से, सिर्फ अपने सिंबल से,
सिर्फ अपने एक्शन से, हमारे इवन हमारे एटीट्यूड से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है रिसीवर पार्ट को। तो इसमें कम्युनिकेशन मिक्स का एक एग्जांपल दिया है कि रिटन में पर्पस क्या होता है, एनालिटिक एंड रीजनिंग होता है, ओरल में एसिमुलेटिव और इमोटिव होता है, ऑडियंस रिटन में नॉन इंटरेक्टिव होता है, ओरल में इंटरेक्टिव होता है। कोई भी कम्युनिकेशन रिटन में दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या उनके फीचर्स हैं। मीडियम हमेशा वर्बल होता है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओरल में जब आप देख रहे हैं, जब भी आप कोई एज ए लीडर, एज ए स्पीकर आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में आप जो बॉडी जेस्चर्स बना रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैसेज रिटन में बहुत ही लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटिव होता है, लेकिन ओरल में शॉर्ट भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि जितना कम बोलेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा। फीडबैक रिटन में कभी फीडबैक नहीं आती है, ओरल में फीडबैक आती है। आप पूछ रहे हैं कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, तो इमीडिएट क्विक रेस्पॉन्स मिलता है मास से कि यस हम एग्री हैं। तो ये कम्युनिकेशन के रिटन एंड उसके ओरल के कुछ डिफरेंस यहाँ बताए हैं। ये इसको फर्दर डिटेल्स दिया, पर्पज, ऑडियंस, मीडियम, मैसेज, फीडबैक इसी को दिया है। सेलेक्टिंग मीडिया ऑप्शंस, देखिए बहुत सारे सेल्स के, प्रमोशंस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी सेलेक्ट करने का एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक होते मीडिया रिचनेस, मीन्स मीडिया इतनी हाई इंफॉर्मेटिव होती जाती है कि आप अभी से कुछ रिकॉर्ड कीजिए, वो विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट्स आपकी वो इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड आपको पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जो मीडिया है वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही फास्ट पहुंचाने का काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसा नहीं कि अभी ये कोई इन्फॉर्मेशन इमीडिएट जा रही है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वो उस चीज़ को एज ए रूटीन उसको भेजते रहते हैं और साथ में उसको टाइम टू टाइम उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। तो ये जो मीडिया है, ये इसकी क्वालिटी है कि अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, तो उसे मीडिया की हेल्प से आप 1 क्लिक में पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में आप उसको पहुंचा सकते हैं। ये हैं कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जिनकी हम बात कर रहे थे, कि जिनमें हम अपने बॉडी जेस्चर्स, या कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ हाथ हिलाते हैं, कई बार हाथों के जेस्चर्स दिखाते हैं, बॉडी के जेस्चर्स दिखाते हैं। तो ये सब उसमें आते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। जैसे बॉडी मूवमेंट है, कई लोग बॉडी मूवमेंट से अपना जो प्लेजर, डिसप्लेजर, एग्रीनेस, डिसएग्रीनेस शो करते हैं। स्पेस, प्रॉक्सिमिक्स, वॉइस पैटर्न, कोई चीज़ जब आप जोर जोर से बोलेंगे तो उसका मतलब वो अपनी चीज़ को वो ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट है, कितना टाइम ले रहे हैं बोलने में। टॉर्च किसी पर्टिकुलर को हाईलाइट करें। इवन कलर भी इम्पोर्टेंट है इसमें, जो आप वेयरिंग कर रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लेआउट, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब के सब। अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, सॉरी काइनेसिस की बात करें, जैसे अब जिसको हम कहते हैं बॉडी मूवमेंट, उसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, हमारा जेस्चर होता है, पोस्चर होता है, मूवमेंट होता है। ये हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं उसको डिटेल में शो करते हैं, उसको बताते हैं कि बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं। इसमें शायद कुछ आगे पोस्चर्स भी दिए हुए हैं, सॉरी नेक्स्ट इसमें दिए हुए हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट जेस्चर्स हैं, हाथों के, पैरों के, फेस में भी, आँखों के, लिप्स के। आपने देखो कई बार हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, लिप्स से अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, आँखों से दे सकते हैं, अपने जो हमारी जो आँख के ऊपर जो हमारे आईब्रो हैं उनसे भी हम अपने बहुत सारे कम्युनिकेशन करते हैं।
के आगे हम इसको और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल में कम्युनिकेशन में जैसे बहुत क्लियर हमने पढ़ा कि हम अपनी ओरल कम्युनिकेशन में 2 चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले तो जो कम्युनिकेटर वाला कम्युनिकेटर है वो ही और शी शुड बी रेडी टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, यानी कि बोलने वाला बोलने को राजी होना चाहिए। दूसरा जो रिसीविंग एंड पर जो रिसीवर है वो सुनने के लिए एग्री हो, सुनने के लिए राजी हो वो। तीसरा जो मीडियम है वो एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए ताकि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो दे रहा है आपका जो सोर्स है वो उतनी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंच पाए ताकि उसमें ज़्यादा लॉस ना हो इंफॉर्मेशन का। तो ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, बोलने वाला बोलने को राजी हो, सुनने वाला सुनने को राजी हो और इन दोनों के बीच में प्रॉपर मीडियम एग्जिस्ट करे, तभी ओरल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराने के लिए, फर्दर उनको डिसेमिनेट करने के लिए, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। ओरल कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कौन कौन से हो सकते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन हो सकते हैं, मल्टी ग्रुप कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दीज आर द लेवल। इंटरपर्सनल मीन्स एक 2 लोगों के बीच में, इंट्रापर्सनल 2 से ज़्यादा के बीच में, स्मॉल ग्रुप जिसमें 4-5 लोग, उसमें आप मल्टी ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आप अपनी चीज़ों को आप इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करें बोल करके। एंड पब्लिक, अब जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशंस करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो मल्टी ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। एक पर्टिकुलर विंग का जो हेड होता है वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरपर्सनल में जो एक सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, विंग होती है, उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं सेम लेवल पर, सेम पर्पज के लिए, वो इंटरपर्सनल करते हैं। और एक इंट्रापर्सनल, कई बार आपने देखा होगा कि हम खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन को अपने आप को ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि वो हम लोग सुनते हैं, हम लोग विजुलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। दैट इज द इंटरपर्सनल। ये उसी के बारे में है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ मोस्ट इंटरेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि सेम लेवल पर सेम लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि सेम कॉजेज के लिए उन्हें बहुत बार आपस में बात करनी होती है कि कितना गोल अचीव हो गया, कितना और बाकी है और हमें क्या क्या करने हैं। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कहने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले नहीं हैं। एक सेंडर है, एक रिसीवर है और बीच में इंफॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ मीडियम। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट को इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कस्टमर सेल्समैन की बात कर रहे हैं, ये इंटरपर्सनल है। सबॉर्डिनेट फिर बॉस को इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुछ स्टेजेस हैं इंटरपर्सनल रिलेशन को डेवलप करने के लिए। एक है फॉर्मिंग फर्स्ट इंप्रेशन, डेवलपिंग म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस, ऑनरिंग साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, डेवलपिंग ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस। ये एग्जांपल ले लीजिए, कोई सपोज करिए कोई सेल्समैन या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब किसी अपने कंज्यूमर से मिलता है तो पहले एक्सप्रेशन में उसका जो नीड है या जो उसकी जो मोटिवेशंस लेवल बढ़ाता है उसका, जो कंज्यूमर का, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिटवीन द फॉर दिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद में म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आपने देखा होगा कि इवन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको एश्योर करता है कि आपको प्रोडक्ट तो मैं दे रहा हूँ, साथ में सर्विसेज आपकी डिलीवरी होंगी और ड्यूरिंग द सर्विसेज
वो उसका फेथ गेन करता है कंज्यूमर का, जो आगे फर्दर उसको म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ, जब आप बुलाओगे तो तभी आपके यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अगर उसमें कुछ खामी है तो उसको तुरंत ठीक करूँगा। तो ये सब म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करना, एक दूसरे को मीन्स इज्जत दें, दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं कि उसको किसी को डिसओबे करें या किसी को डिसरिगार्ड करें। कस्टमर कोई एक्सपेक्टेड है कि वो जो सेल्स आ रहा पर्सन आ रहा है उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट है। एट द सेम टाइम वो सेल्स जो पर्सन है उससे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंज्यूमर को प्रॉपर रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड दे। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस, अगर तीनों होंगी तो आपस में जब इतना लंबा चौड़ा एसोसिएशन होगा आपस में एक दूसरे के साथ, तो ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं। नॉन वर्बल बिहेवियर इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। नॉन वर्बल, देखिए जब भी कोई कम्युनिकेशंस होता है, हम बोलने के साथ साथ हम लोग हमारा खुद का जो बॉडी जेस्चर है, हमारा खुद का जो एटीट्यूड है, हमारा खुद का जो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हम बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन हमारा हम साइड से दिख रहे हैं, हम प्रॉपर ढंग से उसकी तरफ आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना अलग एटीट्यूड लेके बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी इंटरपर्सनल रिलेशन को वो अफेक्ट करता है। सो नॉन वर्बल बिहेवियर में इंटरपर्सनल इंटरेक्शन और इंटरपर्सनल रिलेशन में नॉन वर्बल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे आपने देखा सिंपैथिक जेस्चर होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, बातें करते समय स्माइल हो, ठीक है? आपकी जो आइज़ हैं वो एक्सेप्टिंग चीज़ों को हों, एक्सपेंसिव जेस्चर हो, मतलब एक तरह से ऐसा ना हो कि बहुत ही अड़ियल जैसा हो, स्पीकिंग लाउडली क्विकली एट द टाइम हो, इग्नोरिंग रिस्पॉन्स। ये इग्नोरिंग रिस्पॉन्स वाला, ये सॉरी इसमें आ गया जो हम इसको वार्म सिग्निफिकेंस है, हॉस्टिलिटी है और सबमिसिवनेस है एंड कंट्रोल डोमिनेशन। 4 तरह से हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम जो हॉस्टाइल करने वाला है वो एग्रेसिव पोस्चर बनाएँगे, अपनी आवाज़ को बढ़ाएँगे, सेट माउथ कई बार बातें नहीं करेंगे, डिस्टेंस बहुत दूर से डिस्टेंस बनाएँगे, अपनी आँखें दिखाएँगे। तो दीज़ आर द नॉन वर्बल ये आपके नॉन वर्बल फैक्टर्स हैं जो आपके कम्युनिकेशंस को एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं जो ज़्यादा आप अंडरस्टैंड आएँगे। फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे इसने कहा पहला वाला पिक्चर में इंटरेस्ट दिखा रहा है, दूसरे में डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है, तीसरे में एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, चौथे में बिल्कुल मूड एकदम अपना फेस एकदम साइड लाइन कर लिया, मीन्स इट इज़ शोइंग रिजेक्शन और बीइंग बोर्ड और बीइंग नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। दूसरे जेस्चर्स, आपका बॉडी जेस्चर, खुद का बॉडी जेस्चर, एक मेकिंग ए क्रिटिकल कंपैरिजन ऑफ योर प्रपोजल, एक ये डिसबिलीफ है। देन ये जो है आपका दैट इज़ नेगेटिव इवैल्यूएशन है, ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, ये रेलेवेंट टू मेक अ डिसीजन है। देन बोर्ड शो कर रहा है अपने आप को ये और रिजेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशंस को। तो ये बॉडी यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपके सामने जो पर्सनल सेलिंग में अगर कोई एजेंट आया है। रेजिडेंशियल है, डिफेंसिव है, कॉन्फिडेंस है, यहाँ भी बैठ कर के जो बैठने की जो पोस्चर्स हैं वो भी शो कर रहे हैं उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस बिहेवियर को। रिटन कम्युनिकेशंस हमने पढ़ा है कि जो हम कोई इन्फॉर्मेशन राइटिंग के थ्रू लिख करके अपने दूसरे पार्ट तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है गुड राइटिंग लेटर। रिटन कम्युनिकेशन में हम
अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर हमारी अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करें, जिसमें एक गुड राइटिंग है, अपनी जो नॉलेज है उसको हम अपने राइटिंग के थ्रू, जो अपना जो रिसीवर है उसको पहुंचाते हैं थ्रू लेटर, तो ये एक वर्बल इसका सॉरी रिटन कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है, गुड राइटिंग लेटर। अपने लेटर बहुत सारे लिखे होंगे, फिर उसकी फर्दर स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए। देन एक होता है स्ट्रेचिंग रिफ्यूजल और बैड न्यू कॉरेस्पॉन्डेंस। हम अपनी जो न्यूज़ हैं उसको भी लेटर के थ्रू हम पहुंचाते हैं। इवन जो अच्छी चीज़ है वो भी लेटर के थ्रू पहुंचाते हैं, जो बुरी चीज़ है वो भी अच्छी थी वो भी अपना। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, इफ़ यू आर ए गुड राइटर, तो बुरी चीज़ को भी आप दूसरे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक सही ढंग से अगर चीज़ों को कम्युनिकेट करें तो वो रिसीवर को इतना हार्श, इतना दुखी नहीं करता। अगर वो बैड इन्फॉर्मेशन हो तब भी वो उसको सुनता है और उसको इजीली अंडरस्टैंड करता है। ये थी आपकी कम्युनिकेशन के जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी इसमें स्किल्स थे, टाइप्स थे, दैट इज कम्युनिकेशन। एक यूनिट और बची है, उसको भी फिनिश कर लेते हैं, फिर बाद में आपसे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको डील करेंगे। यस, सो नेक्स्ट यूनिट इज सेल्स प्रेजेंटेशन। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, इवन सेल्स प्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि एक से पर्सनल सेलिंग में किस तरह से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस कस्टमर तक, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहिए या सेल्स एजेंट कहिए, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट था प्रेजेंटेशन। यानी कि वो अपने प्रेजेंट करने के तरीके से, जिसमें कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्किल्स भी यूज करने जा रहा है वो, और अपनी चीज़ों को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने का, जिससे हम अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें, उसकी नीड को अराउज कर सकें, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, यूज करे और फर्दर उस पर फीडबैक दे। और अपने जो साथ के जो मीडिया में जो पीयर्स, सॉरी उसके जो सोसाइटी में जो पीयर्स हैं, उनको भी उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करे। तो सेल्स प्रोडक्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए, इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है। पहले तो प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, किस टाइप की प्रेजेंटेशन होती हैं, उसमें सेल्स प्रेजेंटेशंस कैसी होती हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, बॉडी क्या होती है उसकी, किस तरह से हम उसको एंड करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कब क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कब हम जवाब देते हैं। ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशंस में हम इसको एक ओवरव्यू लेते हैं। फॉर मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो पर्सनल सेलिंग को डील करता हो। इसको एक तरह से हाईलाइट या अंडरस्टैंड करने की, नोट करने की ज़रूरत है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ए पर्सन हु इज डीलिंग पर्सनल सेलिंग। So, for marketing a pharmaceutical product, the medical representative frequently make a presentation of the product to the doctor, wholesaler and retail chemist. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम सिर्फ डॉक्टर से मिलना नहीं है, होलसेलर से भी मिलेगा, रिटेल केमिस्ट से मिलेगा, और उसके बाद वो कंपनी, जिस कंपनी को वो ऑन करता है, जिस कंपनी को बिलोंग करता है, वहाँ की मैनेजमेंट से भी वो प्रॉपर डील करता है। और इन सब डीलिंग के लिए presentations become very important. You can have excellent content with good presentation technique and win the business. सीधी सी बात है कि अगर आपके पास नॉलेज है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट और स्टेक होल्डर, देन वो नॉलेज फिर किसी काम की नहीं है। तो इसलिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपेक्षा की जाती है कि ही शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर, और कम्युनिकेटर होने के साथ साथ में वो अपने कम्युनिकेशन स्किल में जो प्रेजेंटेशन की जो स्किल है उसको बखूबी, उसको इफेक्टिवली यूज करना। ही शुड बी एबल टू यूज effectively presentation method to provide the information to the client or customer. So you can have good content with excellent presentation techniques and win. You may not have ever had poor presentation skill and good or excellent contents winning. Yes, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि गुड प्रेजेंटेशन आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएँ और डॉक्टर आपसे तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए या मोटिवेट हो जाए, या आपके जो होलसेलर है वो मोटिवेट हो जाए। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, कंपनी आपकी अच्छी है, बट डूरिंग द पर्सनल सेलिंग प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है, आप अपने उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बता पाए, उसकी जो प्राइसिंग है, उसकी जो कॉस्टिंग है, उस सब के बारे में नहीं बता पाए। सो poor representations are consistently loser irrespective of purpose or business for which the presentation is made. अब मैंने कहा जैसे बिजनेस भी अच्छा था, थॉट्स भी अच्छे थे, आइडिया भी अच्छा था, प्रोडक्ट भी अच्छा था, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब हुई, इसलिए उसका जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। इसलिए प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है फॉर ए मार्केटिंग, फॉर ए प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन, ये हमने बताया, इसमें पहले डिस्कस हो चुका है कि प्रेजेंटेशन एक तरह का कमिटमेंट है और एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, या उनकी हम बीच बीच में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। और एक इसमें मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्रेजेंटेशन कमिटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेजेंटर एंड ऑडियंस आर द मेकिंग जजमेंट। जो प्रेजेंट कर रहा है वो जो फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और एक कमिटमेंट दे रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी प्राइस अच्छी है, ये यूजेबल है, एक्सेसिबल है, अवेलेबल है एट योर डोर स्टेप। और उसके बाद में वो जो रिसीविंग एंड पर है, जो कस्टमर, वो जज करता है कि यस ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। वो एक जजमेंटल लेवल पर होता है। बेसिकली यहाँ भी एक सेंडर होता है इंफॉर्मेशंस का या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस का, या वहाँ एक रिसीवर भी होता है, कस्टमर। उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो किस तरह की प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं सेल्स प्रेजेंटेशंस? पहला है कैंड प्रेजेंटेशन, द सेकंड प्लान्ड प्रेजेंटेशन, द थर्ड इज ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन। ये टाइप्स हैं प्रेजेंटेशंस की, सेल्स प्रेजेंटेशंस की, और बहुत सिंपल है, ज़्यादा जैसे कि नाम से ही पता चलता है इनका। पहली है जो कैंड प्रेजेंटेशन आर दोज प्रेजेंटेशन वेयर टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज केयरफुली वर्डेड, टेस्टेड, फाइनली रिटन डाउन। यानी कि हमने इसको जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली टाइप किया है और उसको फिर देखा भी है कि ये सही लिखा है नहीं लिखा है, और उसके बाद फाइनली उसको तैयार किया है कि इसको हम अपने कस्टमर को बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो आपका जो सेल्स
पर्सन है, डीलिंग पर्सन है, वो उसको पढ़ता है, फिर उसको मेमोराइज करता है और फिर उसको उसी ऑर्डर में लोगों को बताता है, लोगों को प्रेजेंट करता है अपनी चीज़ों को। लेकिन यहाँ भी जो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो होती है कि यहाँ भी बॉडी जेस्चर्स बिकम इम्पोर्टेंट। यहाँ भी जो सेल्स जो पर्सन है उसका बॉडी जेस्चर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। So this canned presentations method is most commonly used in non-technical product selling like pharmaceutical, telephone selling, door-to-door selling। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो ये सेल्स एजेंट, या आपने जैसे लाइफ इंश्योरेंस का भी कल आपने एग्जांपल देखा होगा, तो उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं उस पॉलिसी के बारे में, रिटन लिखी होती हैं, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, प्रिंट फॉर्म में होती हैं। तो कई बार क्या करता है वो जो सेल्स पर्सन है, दैट मे बी द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और इंश्योरेंस और पॉलिसी जो सेलर है वो हो सकता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर है उनको पढ़ाता है, उनके साथ बात करता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसके फ़ायदे हैं और ये इसमें फ़ायदे आपको ये प्रॉफ़िट होगा, ये बेनिफिट होगा। तो दिस कैंड प्रेजेंटेशन इज़ यूज्ड कॉमनली। ये जो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो यही यूज़ होती है, क्योंकि किसी के भी पास वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता है कि वो प्रेज़ेंट करे, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन दे या कोई और तरह की प्रेजेंटेशन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि डोर टू डोर सेलिंग में वही ईज़िली और एक्सेसिबल है कि इन्फॉर्मेशंस का एक पर्चा हो, उस पर्चे को पढ़ कर के सबको सुना दो और चाहो तो वही पर्चे की कॉपी उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द कंज्यूमर्स। दूसरा प्लान्ड प्रेजेंटेशन, देखिए बिल्कुल कैंड प्रेजेंटेशन की तरह है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर है कि ये प्रॉपरली प्लान्ड होती है। It is no doubt carefully planned and organized, but still it has personal touch of individual making the presentation. In this method, training department provide just a format and the individual salesperson then write explanation, descriptions and illustrations। मीन्स कैंड इन्फॉर्मेशंस में जैसे वो अपना सेल्स जो पर्सन है वो चीज़ें लिख के लाया था अपने आप, उसने जो उसके पास रेडीली अवेलेबल थी। लेकिन अब प्लान्ड में उसको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशंस कंपनी से मिलती हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, उनको फर्दर वो डिस्क्राइब करके अपने रिटन फॉर्म में प्लान करके कि कस्टमर का ये क्वेश्चन हो सकता है तो मेरा ये जवाब होगा, कस्टमर ने अगर ये पूछ लिया तो उसका ये उसका रेमेडी होगी। एक तरह से प्लान्ड चीज़ों को वो बना, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को प्लान तरीके से वो डिस्क्राइब करते हुए एक काइंड ऑफ शॉर्ट नोट बनाता है जिससे वो इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने स्टेक होल्डर को दे पाए। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन आपने देखा ही होगा जैसे आपका ये मूवीज़ हैं, छोटे-छोटे जो एड्स हैं आपने देखे होंगे टेलीविज़न पे आते हैं, ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि उसमें जो वॉइस भी आ रही है, साथ में उसका जो एक्शन के रूप में उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है कस्टमर, उसको भी दिखाया जाता है। दैट इज़ नॉट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन। यहाँ पर बेसिकली जैसा उसका क्वेश्चंस होगा कस्टमर का या क्लाइंट का, उसी से रिलेटेड चीज़ें जो पर्सनल सेलिंग में जो इन्वॉल्व जो पर्सन है मेडिकल, उसी से रिलेटेड चीज़ों का जवाब देता है, उसी से रिलेटेड चीज़ों को पिक्चराइज करता है, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें कि किस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी, कोई भी प्रेजेंटेशन ले लीजिए आप, उसका कोई इंट्रोडक्शन होगा, उसके फिर थीम होगी, फिर सब थीम होगी, फिर उनसे रिलेटेड उनकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। ये सिंपल सा है एक कि किस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। कोई भी प्रेजेंटेशन ले लीजिए, सबसे पहले उसका जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, फिर जिसके बारे में आप बोलने जा रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसका टाइटल होगा, फिर उसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसमें किस तरह से उसकी क्वालिटी हैं, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या किस तरह से उसको यूज करना है। तो ये सब उसी का स्ट्रक्चर है प्रेजेंटेशन का।
देखिए, एक बॉडी प्रेजेंटेशन है कि आपकी बॉडी से ही पता चल रहा है कि आप किस तरह से उसको इन्फॉर्मेशंस को ले रहे हैं। और बाद में उसका एंड आपने देखा होगा कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को फाइनल कंक्लूड करते हुए अपने प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशंस को कंक्लूड करते हैं। बीच में आप क्वेश्चन आंसर, जनरली लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई भी प्रोडक्शन का प्रमोशन आप प्रेजेंटेशन के थ्रू 2 पार्ट में कर रहे हैं कि पहले उसकी क्वालिटी के बारे में बताएँगे, फिर उसका मार्केटिंग जो पार्ट है वो लेंगे, यानी कि उसकी प्राइस क्या है, वो कहाँ से मिलेंगी, उसके आप उसको क्या प्रॉफ़िट दे रहे हैं, क्या उसकी स्कीम्स हैं, क्या उसमें फर्दर आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं। बीच में भी क्वेश्चन्स आंसर्स के लिए स्कोप होता है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूज़ क्वेश्चंस होते हैं, हॉस्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, टू पार्ट ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर नहीं दे सकता है ऐसे। उनको किस तरह से हैंडल करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या पर्सनल सेल, कन्फ्यूज़ है उसको, क्वेश्चंस ही कन्फ्यूजिंग नेचर का है, उसको पता ही नहीं है कि वो बेसिकली क्वेश्चंस क्या है, उसको भी हैंडल करना है। हॉस्टाइल आपने देखा होगा कई बार को ऐसे ऊट-पटांग क्वेश्चंस पूछते हैं पब्लिक, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कई बार वो हॉस्टाइल हो जाता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से साइडलाइन करना चाहिए। 2 पार्ट होते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस के 2-2 बार पहले पूछा, फिर दोबारा पूछ लिया, फिर दोबारा पूछ लिया। एक कई बार कई लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। सपोज़ करिए आप लाइफ बॉय का प्रमोशन कर रहे हैं और वो आपसे पूछ लेगा कि वाटर में कौन-कौन से कंटेंट होते हैं। तो कई बार ऑफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कई बार पूछेंगे कि ऐसा क्वेश्चंस जो आपके आस-पास के एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड ना हो, जिसके बारे में आप प्रमोशन कर रहे हैं, उससे तो छोड़िए, आस-पास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो उस तरह के कांट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। प्लानिंग द प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी, देखिए जब आप प्रेजेंटेशन बना लेंगे, मीन्स उसका पहले अपना जो प्रेजेंटर है उसकी इन्फॉर्मेशन, देन जो टॉपिक है, कंटेंट है, उसका इंट्रोडक्शन, देन उसकी थीम, सब थीम, बॉडी स्ट्रक्चर उसका, उसकी यूजेज, उसकी क्वालिटीज़, उसकी लिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस, उसके फर्दर उसमें क्या-क्या और उसमें चीज़ें इवॉल्व होंगी, क्या उसकी इंसेंटिव हैं, क्या प्रमोशन उसकी पॉलिसी है। ये सब चीज़ों को एक फ्रेम में सीक्वेंसिंग कर लें, वही उसका प्रेजेंटेशन मेथड है। जैसे डिफाइन द पर्पज़, आप प्रेजेंटेशन क्यों आप बना रहे हैं, उसका पर्पज़ डिफाइन होना चाहिए। एनालाइजिंग द ऑडियंस, आप किसको आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएँगे। सपोज़ करिए कि बहुत बड़ी को बना रहे हैं, गैदरिंग को बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लाइड्स के नंबर्स भी घटा-बढ़ाएँगे आप। डेवलपिंग मैसेज, किस टाइप का मैसेज आप देना चाह रहे हैं आप मासेस को, अपने ऑडियंस को। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन मेथड, आप कौन सा मेथड आप लेंगे, यानी कि आप वर्बली बोलेंगे या उनको दिखा करके बोलेंगे या उनको दोनों का यूज़ करेंगे, इस तरह का आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या अपने आप जो याद करके लाए हैं वही आप बोलेंगे, या जो आप नोट बना के लाए हैं उसी को पढ़ेंगे, या जो नोट्स आप बनाए हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं। डिसाइडिंग द प्रेजेंटेशन मीडिया, आप कौन सी मीडिया का यूज करेंगे, ऑडियो का, वीडियो का या प्रिंट मीडिया का, तो ये है आपका डिसाइडिंग द प्रेजेंटेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशंस को किस तरह से आप प्रोवाइड करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ रिसीवर। प्रेजेंटेशन स्किल, कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल आपने देखा होगा, जब भी कोई प्रेजेंटेटर अपने इंफॉर्मेशंस को फर्दर डिसेमिनेट करना चाहता है सोसाइटी को, कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को, तो उसका पर्सनल एस्पेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसका खुद का बॉडी जेस्चर कैसा है, वो खुद देखने में कैसा है, किस तरह से वो चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा है इंफॉर्मेशंस को। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सिंसियरली है, कॉन्फिडेंट उसमें है नहीं है, फ्रेंडलीनेस है नहीं है,
नॉन वर्बल बिहेवियर में जैसे उसकी बॉडी जेस्चर्स आपने वो एग्रेसिव दिख रहा है, काइंड दिख रहा है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। या आपने देखा होगा कई बार आपने कि वो जस्ट पढ़े ही जा रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा। दूसरा एक वीकलिंग है, ग्रीपर है, कई बार माइक को पकड़ के लोग छोड़ते ही नहीं है। तीसरा म्यूजिशियन कभी इधर डांस किया, कभी उधर बोला, कभी इधर बोला। तो दीज आर द ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। यस, ये रीडर है पर जस्ट पढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। ये है वीकिंग, यानी कि उसके ऊपर बिल्कुल लदे जा रहा है डाइस के ऊपर। ये ग्रीपर है, एकदम बिल्कुल बोले जा रही हैं, चिल्लाए जा रही हैं। ये म्यूजिशियन है का एक वो दिया है, पोस्चर दिया है। ये बॉन वॉयगर है, देन ये पेसर है। तो इस तरह से नॉन वर्बल प्रेजेंटेशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्दर जो आपके मोमेंट का जो प्रेजेंटर है, उसके मोमेंट में किस तरह के हैं, उसका कौन सा बॉडी जेस्चर है, ये भी दिखाया है। ये एयर होल्ड है, एयर ग्राफ्स है। ये रेज्ड फोर फिंगर मीन्स लोगों को चेतावनी देता, समझाता हुआ। ये हैंड को अपना पर्स, यानी कि अपने चीज़ों को ग्रास्प करता हुआ कि इस तरह से। हैंड बैंड, एयर पंच, ये सब बॉडी जेस्चर हैं टाइम टू टाइम। ये जो आपने देखा होगा लीडर्स भी इन सारे बॉडी जेस्चर्स को यूज करते हैं टाइम टू टाइम। जितने भी ये हैंड सीजर, किसी चीज़ को डिनाई करना, मतलब दोनों क्रॉस फिंगर है। हैंड चॉप मीन्स स्ट्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को कि आपको ये चीज़ होनी है। पाल्म फ्रंट, समझाते हुए। पाल्म अप, चीज़ों को मोटिवेट करते हुए। पाल्म डाउन मीन्स पुल डाउन, एंड पाल्म साइड मीन्स तरह से डिस्क्राइबिंग करते हुए चीज़ों को। ये सब दीज आर द पोस्चर्स ऑफ प्रेजेंटेटर कि वो किस तरह के। यहाँ पे आईज जेस्चर्स भी दिखे हैं, डिफरेंट आई जेस्चर्स यूज करते हैं लोग अपना प्रेजेंटिंग करते समय। अगर हम ओरल की बात करें तो हमारी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, यानी बड़ 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 बोले जा रहे हैं कि नो बडी इज रेडी टू लिसन कि उसने क्या बोला है। दूसरा जो रेट्स है, ऐसा नहीं कि आप शब्दों को बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं या बहुत धीमे बोल रहे हैं। तो पिच अच्छी होनी चाहिए आपकी स्पीच की, रेट अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम भी प्रॉपर हो, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, बहुत ज़्यादा धीमा ना हो। वोकल क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन, जो आपके जो वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं उनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो ये ओरल कम्युनिकेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस कब होगी, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसको भी आप पढ़िएगा। ये हैं, इन प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन maybe you should start up halfway though content is always the first requirement of any presentation. 1% content breakdown, delivery is never far behind. It is impossible to be too clear. ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके। स्टार्ट हाफ वे, प्लान आउट कंटेंट, क्लैरिटी होनी चाहिए, पार्शियल रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, एनकरेज हो करते रहें आप बीच बीच में पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि लोग ऐसा ना हो कि बिना सुने ही चले जाएं। कंट्रोल नर्वसनेस, अपनी नर्वसनेस को, जब कोई भी स्पीकर होता है तो हल्का सा नर्वस होता है, लेकिन कॉन्फिडेंट शो करना है और अपनी नर्वस को कंट्रोल करना है। आई कांटेक्ट बनाए रखने की ज़रूरत है। जब कोई स्पीकर बात करता है तो उसको डाउन नहीं देखना चाहिए, उसको आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंट शो करना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी जेस्चर्स की हमने बात की थी, तो एक गुड प्रेजेंटेटर के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स जो हमने अभी डिस्कस किए। तो इसके साथ ये भी टॉपिक ख़त्म हो गया है। उसके बाद में समरी आ जाती है। सो ये आज के जो 3 हमारे जो टॉपिक हैं, हमने कोशिश की कि इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लें।
हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू मे आस्क, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन एंड वी मीट टुमारो एट सेम टाइम. So have a good Thank you, night. sir. Thank you. Okay, good day. Good night.